सत श्री अकाल, नमस्कार। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਹੈ। ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਬਿਯੋਂਡ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਵੀਡੈਂਸ। ਫਿਰ ਕਿ ਪੰਚਨਾਮਾ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਜਾਂ ਇਨਕੁਐਸਟ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹਨ। FIR ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਜੋ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਫਿਰ CBI NI ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਾਅ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਔਰ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੀਗਲ ਕੰਸੈਪਟ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਗਲ ਔਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਤਫਤੀਸ਼। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 2H। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ 2H ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਲਿਟਰਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਲਿਟਰਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੇਅਰਫੁਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਡਿਸਕਵਰ ਐਨੀ ਫੈਕਟ ਔਰ ਗੇਨ ਐਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਲਿਟਰਲ ਮਤਲਬ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਗਲ ਮੀਨਿੰਗ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ 2H ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। all those proceedings which are conducted for the purpose of collection of evidence, ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਗਜ਼ੌਸਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ ਬਟ there is something more than that, there is something ਜੋ ਕਿ ਇਨਕਲੂਸਿਵਨੈਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਜਨਰਲ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਵਿਚ ਆਰ ਫॉर द पर्पस ऑफ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਵੀਡੈਂਸ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲਿਟਰਲੀ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਫॉर द पर्पस ऑफ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬਟ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੂੰ। ਫॉर एग्जांपल ਅਗਰ एग्जांपल ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ FIR ਲੌਜ ਕਰਨਾ, FIR ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 154 ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਲੌਜ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਯੈਸ। ਪਰ ਕੀ FIR ਲੌਜ ਕਰਨਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 172 CRPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ। ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਦੇਖੀਏ दैट इज नॉट कलेक्शन ऑफ एविडेंस बट इवन दो इट इज इन्वेस्टिगेशन। फिर की पुलिस रिपोर्ट जो कि 2R ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋर्ट ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ IO ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 173 ਕਲੌਜ਼ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹਨ
जे इन्हां नूं टैक्नीकली देखिए दे आर नॉट कलैक्शन ऑफ एविडेंस, दैन what are these proceedings, फिर इन्हां नूं की कवांगे, इन्हां नूं किस तरीके नाल आपां कैटेगराइज करांगे। सो ਉਹਦਾ आंसर ਇਹ ਹੈ कि ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ डेफिनेशन पढ़ते हाँ उदों ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता चलता है कि ये इनकलूसिव है, ਇਹਦਾ मतलब समथिंग मोर दैन दैट ਦਾ मतलब ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ प्रोसीडिंग जो फैसिलिटेट और कॉम्प्लीमेंट करदियां ਹਨ इन्वेस्टिगेशन ਨੂੰ, ਉਹ भी इन्वेस्टिगेशन ਦਾ ही पार्ट है। होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ चीज़ क्लीयर होई होएगी। फिर उस तो बाद दे विच देखो कई बार क्वेश्चन आया पेपर दे विच कि लेइंग ऑफ ट्रैप की इन्वेस्टिगेशन दा पार्ट है, द आंसर इज यस। ट्रैप प्रोसीडिंग, लेइंग ऑफ ट्रैप जिन्हों आपां ट्रैप प्रोसीडिंग्स भी बोलते हैं, ट्रैप प्रोसीडिंग्स भी इन्वेस्टिगेशन दा पार्ट हुंदियां हन। असल च की चीज़ हैं पहला आपां ये समझ लेंदे हैं। कुछ केसिस दे विच ना पुलिस वालों ट्रैप प्रोसीडिंग कीती जांदी है, जिवें कि करप्शन मैटर या ब्राइबरी दे केसिस दे विच ट्रैप प्रोसीडिंग कंडक्ट कीती जांदी है। इन्हां दा पर्पस हुंदा है एक्यूज नूं रेड हैंडेड पकड़ना, एक्यूज नूं रेड हैंडेड पकड़ना, और रेड हैंडेड पकड़न दा मकसद ही है कि वो एविडेंस जिहड़ा है वो मौके ते ही मिल जाए। ठीक है जी। सो ट्रैप प्रोसीडिंग भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, क्योंकि ट्रैप प्रोसीडिंग का पर्पस भी की हुंदा है, कलैक्शन ऑफ एविडेंस। हुण नैक्सट पेपर दे विच कई बार अपन पूछा जाता है कि आ काम पुलिस कर रही है, दीज आर द प्रोसीडिंग्स विच आर बीइंग कंडक्टेड बाय पुलिस, कि ये इन्वेस्टिगेशन है या नहीं है। उन्हां नूं आपां डिस्कस कर लेने हाँ। सब तो पहला इंटैरोगेशन। इंटैरोगेशन आपां नूं पता किहड़े सैक्शन च हुंदी है, इंटैरोगेशन सैक्शन 161, जो कि आईओ इंटैरोगेशन करता है इन द फॉर्म ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है जी, इन द फॉर्म ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। कि ये इन्वेस्टिगेशन है, द आंसर इज यस। इंटैरोगेशन भी इन्वेस्टिगेशन है, एदा भी पर्पस कलैक्शन ऑफ एविडेंस है। फिर रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट बाय पुलिस, पुलिस स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दी है किहड़े सैक्शन च, 161 दे विच इन्वेस्टिगेशन दे दौरान आईओ कोल पावर है कि वो स्टेटमेंट नूं रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग कर सकता है, एंड दैट इज एक्चुअली रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट भी एविडेंस ही हुंदियां हन, इसलिए रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट इज आल्सो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देन रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट बाय मैजिस्ट्रेट, और मैजिस्ट्रेट स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है 164 दे विच। इहनूं थोड़ा ध्यान नाल समझना। देखो इहदे विच पहला सवाल तां यह है कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रही हैं, बट रिकॉर्डिंग तो मैजिस्ट्रेट कर रहा है, कि ये इन्वेस्टिगेशन है। ये देखो दो चीज़ा है, जो मैजिस्ट्रेट ये स्टेटमेंट्स नूं रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिहड़े भी परसन भी आ उन्होंने कौन लैके आ रहा है, ठीक है जी, उन्होंने पुलिस लैके आ रही है, राइट। हुण पुलिस जो उन्होंने प्रोड्यूस कर रही है फॉर द परपस कि उन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जान, जो कि फर्दर एज एविडेंस यूज हो सकते हैं, इट मीनस कि पुलिस भी प्रोसीडिंग्स तक कंडक्ट कर रही है। सो रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट दे विच जदों पुलिस ऑफिसर वालों स्टेटमेंट रिकॉर्ड कीतियां जांदियां हन, उस स्टेज नूं भी आपां इन्वेस्टिगेशन कह सकते हैं। हाँ, जो मैजिस्ट्रेट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो दैट इज नॉट इन्वेस्टिगेशन, दैट इज इंक्वायरी, जो कि आपां पिछे इंक्वायरी वाले लैक्चर दे विच डिस्कस किया है। फिर रिमांड अंडर सैक्शन 161, और रिमांड दे विच भी आपां पढ़िया है कि ऑब्टेनिंग रिमांड, रिमांड नूं ऑब्टेन करना फॉर द पर्पस ऑफ कस्टोडियल इंटैरोगेशन, कस्टोडियल इंटैरोगेशन दे लई रिमांड लिती जाती है। पुलिस वाले अरैसट करन तो बाद एक्यूज नूं कोर्ट दे विच पेश करते हैं। सो ये भी वो प्रोसीडिंग हैं जिहड़ियां पुलिस वाले कंडक्ट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फॉर द पर्पस ऑफ कलैक्शन ऑफ एविडेंस। अरैसटिंग द एक्यूज, हुण एक्यूज नूं भी अरैसट करन दे पिछे बेसिकली इंटैरोगेशन पर्पस है, एविडेंस कलैक्ट करना है। सो अरैसटिंग एन एक्यूज इज आल्सो इन्वेस्टिगेशन। मैडिकल एग्जामिनेशन, मैडिकल एग्जामिनेशन का बेसिस ही की हुंदा है, एविडेंस। ठीक है जी, ये बेसिस ही एविडेंस है। सो ये भी एविडेंस मन्निया जाएगा।
और ये भी इन्वेस्टिगेशन का ही पार्ट मनिया जाएगा। प्रैपरेशन ऑफ पुलिस रिपोर्ट जिहड़ी है अपन नूं पता है कि इट इज़ ए डिटेल्ड रिकॉर्ड, जो भी उन्होंने एविडेंस कलैक्ट किया है वह डिटेल्ड रिकॉर्ड है। सो पहला आप डिस्कस किया है कि सारिया दिया सारिया प्रोसीडिंग जो कि एविडेंस कलैक्ट करने लिए हो रही हैं और उन्होंने कॉम्पलीमेंट या सप्लीमेंट या फैसिलिटेट करने लिए हो रही हैं, उन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन ही मनिया जाएगा। देयरफॉर प्रेपरेशन ऑफ पुलिस रिपोर्ट इज नथिंग बट इन्वेस्टिगेशन, राइट। फिर उस तो बाद रेलेवेंट प्रोविजन इन्वेस्टिगेशन जिहड़ा पूरे का पूरा कंसैप्ट है वो 2H ਦੇ ਵਿੱਚ डिफाइंड है, लेकिन पूरा डिटेल्ड लॉ चैप्टर 12 ਦੇ ਵਿੱਚ सैक्शन 154 तो 176 तक है। लेकिन अगर टेक्निकली स्पीकिंग इट इज नॉट 176, इट इज बेसिकली 173। जो 174 तो 176 तक प्रोसीडिंग्स हैं, टेक्निकली स्पीकिंग वो इन्वेस्टिगेशन नहीं हैं, वो बेसिकली की हैं, वो इनक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स हैं, वो इनक्वेस्ट प्रोसीडिंग हैं और वो बेसिस ते इनक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार की जाती है। विच मीनस कि जिहड़ी इनक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स हैं दे आर नॉट इन्वेस्टिगेशन और इनक्वेस्ट रिपोर्ट इज नॉट एविडेंस। इनक्वेस्ट रिपोर्ट एविडेंस नहीं होंदा बिकॉज इन्हां प्रोसीडिंग दा पर्पस एविडेंस कलैक्ट करना नहीं होंदा। इन्हां प्रोसीडिंग नूं कंडक्ट करन दा पर्पस प्राइमा फेसी कॉज ऑफ डेथ नूं असर्टन करना होंदा है, प्राइमा फेसी कॉज ऑफ डेथ, राइट। फिर उस तो बाद अगर आपां नूं पूछा जाए कि इन्वेस्टिगेशन दी जिहड़ी प्रोसीडिंग्स हैं वो एग्जीक्यूटिव प्रोसीडिंग्स हैं या जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं, देखो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स तो हो ही नहीं सकती बिकॉज जुडिशियल प्रोसीडिंग्स तो वो हैं जिहड़ियां कि कोर्ट विच कंडक्ट कीतियां जांदियां हैं बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जिहदे दौरान एविडेंस इज रिकॉर्डेड, ठीक है जी। सो ये जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं हैं, ये एग्जीक्यूटिव प्रोसीडिंग्स हैं और जिहड़ा पुलिस वालों फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है बिकॉज इट इज नथिंग बट फॉर द पर्पज ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ लॉ। आपां बेसिक पढ़ते हैं ना कि एग्जीक्यूटिव है वो लॉ नूं इनफोर्स करता है। हुण पुलिस वाले कौन हैं? पुलिस वाले एग्जीक्यूटिव हैं, उन्हां दी की ड्यूटी है लॉ नूं इनफोर्स करना और लॉ नूं इनफोर्स करन दे पर्पस लई ही तां इन्वेस्टिगेशन की जाती है। सो द आंसर इज कि एग्जीक्यूटिव की जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन है वो एग्जीक्यूटिव इन नेचर होंदियां हैं और वो प्रोसीडिंग एग्जीक्यूटिव होंदियां हैं और इत्थों तक कि जिहड़े पुलिस वाले हैं उन्होंने भी जो आप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहांगे तो वह भी नहीं गलत होएगा। दे आर नॉट जुडिशियल प्रोसीडिंग जो कि 2I दे विच डिफाइंड है, ठीक है जी। नेक्स्ट है कि इन्वेस्टिगेशन कदों आप समझांगे कि वो कमेंस हो गई है और कदों वो कंक्लूड हो गई है, ठीक है जी। देखो इन्वेस्टिगेशन आम तौर पे जनरली कमेंस होंदी है विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR और वो कंक्लूड होंदी है या वो खत्म होंदी है विद द प्रेपरेशन ऑफ पुलिस रिपोर्ट। सो इन्वेस्टिगेशन जिहड़ी है वो बेसिकली इस तो पहला जे आप देखिए कि इन्वेस्टिगेशन जिहड़ी है वो कमेंस होंदी है विद द लॉजिंग ऑफ एन FIR और कंक्लूड होंदी है विद द प्रेपरेशन ऑफ पुलिस रिपोर्ट, राइट। हुण इन्वेस्टिगेशन दा बेसिस की है वो किवें कमेंस होंदी है, किहड़े बेसिस ते कमेंस होंदी है आपां देख लेने हैं। देखो इन्वेस्टिगेशन कमेंस होंदी है पहला तो आम तौर पे जनरली विद रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस दे रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आती है तो सैक्शन 154 क्लॉज 1 दे अंडर FIR लॉन्च की जाती है और इस तो बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। दिस इज वन बेसिस ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। दूसरा है जदों मैजिस्ट्रेट वालों डायरैक्शन होंदी है। देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है कि इफ द इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस फिर उस इंफॉर्मेशन को पुलिस रिकॉर्ड करेगी
और उस इन्फॉर्मेंट ਨੂੰ कंसर्न मैजिस्ट्रेट ਨੂੰ रेफर करेगी और फिर मैजिस्ट्रेट सेक्शन 155 क्लॉज 2 ਦੇ अंडर डायरेक्शंस पास करेगा एंड ऑन दैट बेसिस इन्वेस्टिगेशन शैल कमेंस। उस तो बाद कि FIR होने तो बिना भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है? द आंसर इज यस। जो आप सैक्शन 157 पढ़ांगे उते एक चीज लिखी है कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होएगी ईदर ऑन दी बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और अदरवाइज। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ वर्ड अदरवाइज है उतो पता चलता है। देखो इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड का मतलब ये था कि इन्फॉर्मेशन होगी जिहदे बेसिस ते FIR लॉज होएगी, लेकिन अगर FIR नहीं लॉज हुई तो कि पुलिस वाले की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते? कि पुलिस वाले वेट करेंगे कि पहला इन्वेस्टिगेशन करने के लिए FIR होना जरूरी है? द आंसर इज कि पुलिस वाले बिना FIR होने की वेट किते भी इन्वेस्टिगेशन ਨੂੰ ਕਮੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੈਕਸ਼ਨ 157 क्लॉज 1 इट मीन्स कि विदाउट FIR भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। देन नेक्स्ट इज ऑन द ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट। अगर मैजिस्ट्रेट जिहदे कोल की अपनी जुरिसडिक्शन दे विच अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुंदा है तो मैजिस्ट्रेट को पावर है कि वो सैक्शन 156 क्लॉज 3 दे अंडर डायरेक्शन पास कर सकता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर। ठीक है जी, ये दो केसेस होंदी है। पहला या तो विदाउट FIR, विदाउट FIR का मतलब कि FIR नहीं हुई सो 156 की पावर एक्सरसाइज की गई और FIR लॉन्च करवाई गई और FIR क्योंकि लॉन्च हुई फिर इन्वेस्टिगेशन होगी। दूसरा है आफ्टर FIR कि मतलब FIR तो लॉन्च होगी सी बट पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही, सो उस केस दे विच भी सैक्शन 156 क्लॉज 3 शैल अप्लाई। ठीक है जी। नैक्सट हुण जिवें आपां पहला पढ़िया कि जनरली जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन है वो कमेंस हुंदी है विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR 154 दे विच कॉग्निजेबल ऑफेंस दे रिलेटिंग हुंदी है या मैजिस्ट्रेट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस दे विच भी डायरेक्शन दे सकता है 155 दे अंदर और इट एंड्स विद द पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट जो कि सैक्शन 173 क्लॉज 2 दे अंडर पुलिस ऑफिसर मैजिस्ट्रेट नू फॉरवर्ड करता है। दैट इज ए स्टेज व्हेन द इन्वेस्टिगेशन इज सेट टू हैव बीन कंक्लूडेड। ठीक है जी। नेक्स्ट आप ये देखेंगे कि इन्वेस्टिगेशन करने की पावर किस कोल है? हु हैज द पावर टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन? देखो इन्वेस्टिगेशन करने की पावर जिहड़ी है वो आम तौर पर जो आप 2H पढ़ते अपन पता लगता है कि पुलिस कोल है। ठीक है जी। पुलिस कोल इन्वेस्टिगेशन की करने की पावर सैक्शन 156 तो भी पता चलता है। सो 2H फिर रेड भी सैक्शन 156 और 155 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ क्योंकि ਜਦੋਂ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ਦੇ ਲਈ डायरेक्शन पास हो ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ठीक है जी। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 202 ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨੀ ਪਰਸਨ ਅਦਰ ਦੈਨ ਪੁਲਿਸ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ प्राइवेट इंडिविजुअल है, प्राइवेट सिटीजन है या कोई पब्लिक सर्वेंट है अदर देन पुलिस, वो भी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है हुण जेड़ा भी पर्सन देखो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने की पावर मिलती है 157 चो और इन्वेस्टिगेशन दा प्रोसीजर है 155
157 ਦੇ ਵਿੱਚ 156 ਚ ਪਾਵਰ ਹੈ 157 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਡੋਮੀਨੈਂਟਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਆਫਿਸਰ ਇੰਚਾਰਜ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੋਲ, ਬਟ इट इज नॉट नेसेसरी कि हर एक केस की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ही करेगा। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन भी कर सकता है, लेकिन वो अपनी पावर ਨੂੰ डेलीगेट भी कर सकता है, वो अपने किसी भी सबॉर्डिनेट ਨੂੰ भी एम्पावर कर सकता है कि वो इन्वेस्टिगेशन करन, and that authority lies under section 157. So primarily officer in charge of police station को power है, but once he has given this authority of investigation to any of his subordinate, फिर ਉਹਦਾ subordinate भी इस investigation ਨੂੰ conduct कर सकता है। फिर उस तो बाद ਜਿਹੜਾ भी person, चाहे वो officer in charge of police station है, चाहे वो ਉਹਦਾ subordinate है, he will be known as IO, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। हुण आईओ जिहड़ा है, क्वेश्चन है कि आईओ किस रैंक का पर्सन हो सकता है। याद रखना सीआरपीसी के अंडर कोई स्पेसिफिक रैंक नहीं है। सो पुलिस ऑफिसर ऑफ एनी रैंक, किसी भी रैंक का पुलिस ऑफिसर आईओ हो सकता है। हाँ, अगर उहदे बारे कोई स्पेशल लॉ या स्पेशल प्रोविजन है कि इस रैंक का पुलिस ऑफिसर ही इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पावर्ड है, सिर्फ उस केस दे विच उस रैंक दे इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी नू, उस रैंक दे पुलिस ऑफिसर नू ही आईओ अपॉइंट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की गल करिए, IT एक्ट की गल करिए, फॉर एग्जाम्पल जे आपां दिल्ली स्पैशल पुलिस एस्टैबलिशमेंट एक्ट की गल करिए, फॉर एग्जाम्पल जे आपां प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की गल करिए, इत्थे अथॉरिटीज एक पर्टिकुलर रैंक ऑफ ऑफिसर ही इन्वेस्टिगेशन करन दे लई ऑथोराइज्ड हन, इहदा दी प्रोविजनस हन। ठीक है जी। फिर उस तो बाद दे विच जिहड़ी स्पैशलाइज्ड एजेंसीज हन, जिवें CBI NIA, उन्हां दो इन्वेस्टिगेशन करवाने दे बारे की लॉ है। देखो इनू समझण दे लई ना पहला आपां ये देखदे हन कि जदों भी स्पैशलाइज्ड एजेंसीज द्वारा कोई इन्वेस्टिगेशन की जाती है, ਉਹਦੇ ਕੀ प्रोविजनस हो सकते, लीगल बेस की है। और लीगल बेस को आप ये समझा कि पहला तो यह हो सकता है कि कोई भी जड़ा स्टैच्यूट है, स्टैच्यूट के अंडर ही इटसेल्फ पावर दी गई है। ठीक है जी, कि वो करवाया जा सके। जिवें कि दिल्ली स्पैशल पुलिस एस्टैबलिशमेंट एक्ट 1946, जिवें कि नैशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एक्ट, इन्हां दे विच प्रोविजनस है कि कदों कदों CBI NIA या होर भी अगर कोई रैलेवेंट स्टैच्यूट हैं, वो जिहड़ी एजेंसीज हैं स्पैशलाइज्ड एजेंसी, वो कदों इन्वेस्टिगेशन कर सकती हैं। ठीक है। और दूसरा एस्पैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, दूसरा एस्पैक्ट है कि कदों उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स वालों डायरैक्शन पास होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स वालों हुण कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वालों डायरैक्शन पास करन दा लीगल बेसिस की है। ਉਹਦਾ ਲੀਗਲ बेसिस देखो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ चीज़ ਨੂੰ क्लीयर किया है। फॉर एग्जाम्पल एक लैंडमार्क केस है निर्मल सिंह कालो वर्सिस स्टेट ऑफ पंजाब। निर्मल सिंह कालो वर्सिस स्टेट ऑफ पंजाब सुप्रीम कोर्ट। इस केस दे विच सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया है कि राइट टू फेयर इन्वेस्टिगेशन, राइट टू फेयर इन्वेस्टिगेशन जिहड़ा है वो की है, वो एक फंडामेंटल राइट है। सो राइट टू फेयर इन्वेस्टिगेशन एक फंडामेंटल राइट है। और जिथे भी कोर्ट नू लगता है, फंडामेंटल राइट किथे आर्टिकल 21, जिथे भी कोर्ट नू लगता है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन करवाने दे लई ये जरूरी है कि वो इन्वेस्टिगेशन कोई स्पैशलाइज्ड एजेंसी करे। सो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जिवें कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट
ਉਹਨਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਜਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 226 ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨ ਗਿਆ ਟੂ ਬੀ ਕੰਡਕਟਡ ਬਾय ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਏਜੰਸੀਜ਼, ਜੋ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਨਆਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਏਜੰਸੀਜ਼, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਲਾਅ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਕੰਡਕਟਡ ਬਾय ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਐਨੀ ਪਰਸਨ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾय ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਪੁਲਿਸ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੋ ਕਾਲਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਔਰ ਐਵੀਡੈਂਸ, that is not evidence, ਉਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕਰੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ, ਉਹ 2H ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ, ਉਹ ਚੈਪਟਰ 12 ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਪੁਲਿਸ। These agencies are not police। ठीक है। ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਹ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਨ, ਇਹ ਉਸ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੌਰੀ, ਉਹ ਇਸ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੱਕ ਵੈਲਿਡ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਐਵੀਡੈਂਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਰਦਰ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਟੂ ਕੰਡਕਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਸੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇਹ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਕੇਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ FIR, ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤਾਂ FIR ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ FIR ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ FIR ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅਗਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੈਮਡੀ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ 156 ਕਲੌਜ਼ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਡਰ ਕਰੇਗਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ FIR ਨਹੀਂ ਲੌਂਚ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ FIR ਲੌਂਚ ਕਰੋ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਔਰ ਅਗਰ FIR ਲੌਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬਟ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ FIR ਲੌਂਚ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਰੈਮਡੀ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜੇ 157 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, 157 ਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਇਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਜਾਂ ਇਸ ਫੇਲੀਅਰ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। 157 ਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ it is not of serious nature, या there is no sufficient grounds to proceed further, sufficient grounds to proceed further।
अगर तो सीरीयस नेचर है, मतलब इनू ट्राइवैलिटी भी बोलते आपां कि ट्राइवैलिटी दे बेसिस ते मना किया जा सकता है। ये अलग तो यदा IPC दे नाल आपां सैक्शन 95 दे नाल रिलेट करके इनू पढ़ांगे। तो अगर इन्हां केसिस दे विच रिफ्यूज किया जा रहा है और वो जिहड़ा रिफ्यूजल है या तो वो बिल्कुल ठीक है कि एक ग्राउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं, फिर तो जस्टिफाइड रिफ्यूजल है। लेकिन अगर इन्हां चों कोई भी ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं करता, उन्होंने आप बोलांगे कि इट इज अनजस्टिफाइड रिफ्यूजल। और रिफ्यूजल अनजस्टिफाइड है एंड इन दैट केस जिहड़ा एग्रीव्ड पर्सन है फिर वो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करवाने दे लई सैक्शन 159 के अंडर मैजिस्ट्रेट नू अप्रोच करेगा और मैजिस्ट्रेट 159 के अंडर फिर ऑर्डर करेगा कि तुसी जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हो या मना कर रहे हो वो इन्वेस्टिगेशन तुहानू करनी पएगी। ठीक है जी। नैक्सट हुण कंसैप्ट ऑफ फर्दर एंड री इन्वेस्टिगेशन। देखो इस कंसैप्ट नू समझण दे लई पहला आपां ये समझदे हन कि आम तौर पर जी इन्वेस्टिगेशन है हो चुकी है, मतलब रेगुलर इन्वेस्टिगेशन हो गई है। FIR लॉज हुई, FIR लॉज होने तो बाद दे विच इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई। कंप्लीट होने का मतलब पुलिस रिपोर्ट जी है वो मैजिस्ट्रेट नू दे दी गई। सो कमेंसमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन की इन्वेस्टिगेशन कमेंस हुई, कनकलूड हुई, इत्थे मतलब रेगुलरली कनकलूड हुई। हुण चलान पेश हो गया, कोर्ट ने कॉग्निस ले लिया और फर्दर प्रोसीडिंग्स कोर्ट दे विच चल रही हैं। हुण अगर एक पासे कोर्ट दे विच प्रोसीडिंग्स चल रही हैं ते की उस दौरान जदों पुलिस वाले रेगुलर चलान पेश कर चुके हैं कि उस तो बाद दे विच भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है? द आंसर इज यस। ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ 173 ਕਲੌਜ਼ 2 ਦੇ ਅੰਡਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਉਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 173 ਕਲੌਜ਼ 8 ਦੇ ਅੰਡਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। 173 ਕਲੌਜ਼ 8। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਆਨੇ ਆਪਾਂ ਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ कि फिर तो इन्वेस्टिगेशन करनी, मतलब डी नोवो इन्वेस्टिगेशन दोबारा तो, मतलब जो ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन हुई है ਉਹਨੂੰ खत्म कर दो, ਉਹਨੂੰ नल एंड वाइड कर दो। वो पूरी ਦੀ पूरी इन्वेस्टिगेशन ਨੂੰ वाइप आउट ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ शुरू तो शुरू करो, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੀ ਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ इस तरह नहीं है कि पुलिस अपनी मर्जी ना कर सकती है। री इन्वेस्टिगेशन दे लई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स आर्टिकल 21 ਨੂੰ एक्सरसाइज करते हुए ही री इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकते हैं। ये तो लैंडमार्क केस है रामाचंद्रन वर्सेस आर उदय कुमार। रामाचंद्रन वर्सेस आर उदय कुमार, सुप्रीम कोर्ट 2008। इस केस दे विच री इन्वेस्टिगेशन का मतलब और री इन्वेस्टिगेशन करन दे उपर लॉ नू डिटेल दे विच डिस्कस किया गया सी। हुण इन्वेस्टिगेशन एज क्रूशल स्टेज। देखो अगर अपने तो पूछा जाए कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दे विच सब तो क्रूशल, सब तो इंपॉर्टेंट स्टेज किहड़ी है, तो अनडाउटेबली जो जिन्ना हुण तुसीं समझ चुके हो तुहानूं पता लगेगा कि इट इज़ द स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। पर जे आपां नूं पूछा जाए क्यों, की कारण है, कारण सुनो। हुण आपां देखो अगर इन्वेस्टिगेशन दे विच की हो रहा है, एविडेंस आ रहा है। किसी भी केस दे विच जिहड़ी जजमेंट आएगी, जिहड़ा जस्टिस होएगा वो किस बेसिस ते होएगा? एविडेंस के बेसिस ते होएगा। ਇਹਦਾ मतलब यह हो गया कि जे इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हुई, जे एविडेंस प्रॉपरली कलैक्ट नहीं किया या कलैक्ट ही नहीं किया, सो ਉਹਦੇ बेसिस ਤੇ फिर केस वीक होएगा, ਉਹਦੇ बेसिस ਤੇ फिर ਜਿਹੜਾ डिसीजन आएगा वो गलत होएगा और इट विल लीड टू इनजस्टिस, जस्टिस इंश्योर नहीं हो पाएगा। इसलिए आप कहते हैं कि ईवन जो डिले है ना, डिले बहुत क्रूशल है, एक काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है इन्वेस्टिगेशन दे विच। इसलिए आप कहते हैं कि जिहड़ी क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन है
वो क्वालिटी ऑफ जस्टिस इंश्योर करेगी। ठीक है जी। और एक होर चीज है, देखो अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ਇਹਦਾ मतलब है कि सारा एविडेंस आ रहा है। सारा एविडेंस का मतलब है कि दोनों साइड का, ये जरूरी नहीं है कि पुलिस वाला सिर्फ वही एविडेंस कलेक्ट करेगा या उस एविडेंस को कोर्ट अगे रखेगा जो कि एक्यूज दे गिल्ट ਨੂੰ प्रूव करेगा। पुलिस वाले ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਫੇਵਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਇੰਸ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਤਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੇਜ बहुत ही क्रूशल है। और इसे लिए क्योंकि कोर्ट का काम की है, कोर्ट का काम है जस्टिस देना, इसे लिए कोर्ट नू इन्वेस्टिगेशन दी स्टेज नू सुपरवाइज करन दी भी पावर है। वो आप डिटेल च अगे पढ़ांगे कि सुपरवाइज किवें कीता जांदा है। डॉक्ट्राइन ऑफ इंप्लाइड पावर नू एक्सरसाइज करके कोर्ट इन्वेस्टिगेशन ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੇਜ ਮੋਸਟ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਟਿਲ ਦ ਲਾਸਟ ਫੋਰਮ ਆਫ ਜਸਟਿਸ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਐਂਡ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਜਜਮੈਂਟ ਜੋ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹਨ। हाँ जी, पहली जजमेंट है जिहदे विच सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन दे मीनिंग नू और किहड़े-किहड़े पुलिस दे स्टैप्स हन जिन्हों इन्वेस्टिगेशन मन्निया जा सकता है उन्होंने डिटेल च डिस्कस किया सी। फिर सकीरी वासू केस दे विच सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और इहदे नाल डॉक्ट्राइन ऑफ इंप्लाइड पावर ਨੂੰ डिस्कस ਕੀਤਾ ਸੀ। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ और डॉक्ट्राइन ऑफ इंप्लाइड पावर। ललिता कुमारी केस क्या गया सी कि जो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ लॉ डिस्कस होया सी और सैक्शन 154 इज ए मैंडेटरी प्रोविजन, क्योंकि जदों भी कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आएगी पुलिस वाले FIR लॉन्च करेंगे और इन्वेस्टिगेशन करेंगे। फिर इस तो बाद नंदनी सप्तपति केस, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। ठीक है जी, स्टेटमेंट रिकॉर्ड ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਸੈਲਵੀ ਵਰਸਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਆਫ मेडिकल टेस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ मेडिकल टेस्ट या मेडिकल एग्जामिनेशन ਨੂੰ डिस्कस किया सी। फिर मधुबाला केस ਦੇ ਵਿੱਚ सुप्रीम कोर्ट ने पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट अंडर सैक्शन 156 क्लॉज 3 ਨੂੰ डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्कस किया सी। फिर उस तो बाद ਦੇ ਵਿੱਚ तहसीलदार सिंह एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ਇਹਦੇ ਚ पुलिस ਦੀਆਂ पावर जो कि सैक्शन 162 ਦੇ ਅੰਡਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ डिटेल ਚ डिस्कस ਕੀਤਾ ਸੀ। फिर लास्ट यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस प्रकाश पी हिंदुजा केस, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सुप्रीम कोर्ट ने कहा सी कि मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन ਨੂੰ सुपरवाइज कर सकते हैं, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन च इंटरफेयर नहीं कर सकते। विद दिस अपना जो इन्वेस्टिगेशन का कॉन्सैप्ट है, जी इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन है, वो कनकलूड होता है। होप तुहानू समझ आया होएगा और ये बेसिस ते ही आप फरदर जो इन्वेस्टिगेशन का डिटेल्ड लॉ है जो कि चैप्टर 12 के करांगे उन्होंने कंटिन्यू करांगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।